امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ یہاں حکمران متحد ہوتے تھے اور عوام کو تقسیم کرتے تھے، اب ہم متحد ہو رہے ہیں اور حکمرانوں کو تقسیم کر دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کیا کہا، یہ جانیے اس رپورٹ میں۔ بلدیاتی انتخابات کی آمد، باغ جناح گراؤنڈ میں سجا جماعت اسلامی کا پنڈال۔ جماعت اسلامی نے اعلان کراچی انتخابی مہم تیز کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ شہر کھنڈر بن رہا ہے مگر بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں، کئی ماہ سے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس بار الیکشن وقت پر ہوں گے۔ شہر کھدا ہوا ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے، ایک سڑک بنتی ہے، دوسری بنانے جاتے ہیں، پہلی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تمہارے والد صاحب کے پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں۔ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، سازشیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنا موقف اختیار کیا ہے اس پر قائم رہے، ہمیں الیکشن چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی نے انتظامیہ پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں مگر ہم پھر بھی بنو قابل پروگرام کر رہے ہیں۔ اسی گراؤنڈ میں بچوں نے انٹری ٹیسٹ دیے، ہمارے بچوں نے ٹیسٹ دیا اور کامیاب ہو گئے، جو 6 ماہ بعد آئی ٹی کے ماہر بنیں گے۔ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم نے بنو قابل پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اسی باغ جناح میں ہمارے بچوں نے بھی ٹیسٹ دیا، بچیوں نے بھی ٹیسٹ دیا، کامیاب ہوئے، اس کے بعد ان کے انٹرویوز مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ہفتے 10,000 بچوں اور بچیوں کی کلاسز شروع کر رہے ہیں۔ 6 مہینے میں یہ کورس کریں گے، روزگار ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ ہے کوئی تو سامنے آئے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ان حکمرانوں سے اپنا حق لینا ہے، ہمارا میئر آیا تو ہم محلہ کمیٹیاں بنائیں گے، کمیونٹیز کو ساتھ ملائیں گے، ہمارا میئر گھر گھر جا کر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرے گا، ایک بار جماعت اسلامی کا منتخب میئر آپ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیمرامین حسنین جعفری اور ساتھی رپورٹر ہمنا نثار کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی۔ وفد کے سربراہ اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ بھی ایک آپشن ہے، لیکن کسی کے لیے میدان بھی خالی نہیں چھوڑیں گے۔ پیر الہی بخش کالونی میں واقع ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر پر برسوں کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت پہنچی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں آنے والے وفد میں وفاقی وزیر امین الحق ڈاکٹر صغیر احمد اور دیگر رہنما موجود تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران ایم کیو ایم کے وفد نے 11 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی جلسے میں شرکت کی دعوت دے دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی حلقہ بندیوں کی صورت میں دھاندلی ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 جنوری کو ریکی جینوا میں سیلاب متاثرین کے متعلق ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے اب 11 جنوری کو ہوگی۔ الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہوا اسی ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ تو اس کو الیکشن تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم نے مشترکہ آواز کے لیے وہ تمام آوازیں جو سندھ کے شہری علاقوں میں سنی جاتی ہے ان سب کو دعوت دی ہے کہ 11 کو آئیے ہم مل کر سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ سڑکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن اور جہاں جہاں جا کے پیش کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے ہم پیش کریں۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ 1970 سے لے کر کے آج تک مہاجروں کے ساتھ مردم شماری میں ناانصافیاں جاری ہیں۔ یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 70 کی دہائی، 80 کی، 90 کی، 2000 اور آج 2017 کا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم سالے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 40% کی آبادی پر، اور ہمارے دہی سندھ کی آبادی کا تناسب 60%، جبکہ برمی، بنگالی، افغانی، ویت ملک کا روزگار کی تلاش میں کراچی آتا ہے، پھر بھی ہماری آبادی 40 سے اوپر جا ہی نہیں رہی۔ ایم کیو ایم کے دونوں دھڑوں کے رہنماؤں کے درمیان انتہائی خوشگوار گفتگو ہوئی اور شہری حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کیمرامین شیر فراز خان کے ساتھ عازج جمالی، سٹی 21۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں چند روز باقی رہ گئے ہیں، ایسے میں مہاجر قومی موومنٹ نے شاہ فیصل کالونی نمبر 2 پر شاندار جلسے کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان لمحہ فکریہ تھا۔ جلسے سے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد خطاب کریں گے۔ تفصیلات بتائیں گے سعادت حسین۔
आज मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से शाह फैसल नंबर 2 में एक अजीमुशान जलसे का इनकाद किया गया है, जिससे चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद साहब जो है खुसूसी तौर पे आवाम से खिताब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं UC4 के चेयरमैन के उम्मीदवार खुर्रम साहब, इनसे हम मजीद जानते हैं। खुर्रम साहब, आज एक बहुत बड़ा दिन है, अजीमुशान जलसे का इनकाद किया गया है, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? सर, वक्त की ज़रूरत है और ये शाह फैसल को बहुत टाइम के बाद एक मौका मिला है कि शाह फैसल में आफाक भाई यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और हम नहायत ही मशहूर हैं आफाक भाई के कि बहुत कम टाइम में उन्होंने 3 दिन पहले हमसे कहा कि जी शाह फैसल के अंदर एक प्रोग्राम बनाए और जलसा इनेकाद करें। मैं वहाँ पे अपनी आवाम के साथ, अपनी महाजिर कौम के साथ बराह रास्त कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो उस सिलसिले में आज इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर के बाद आफाक भाई यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। आज के जलसे का उन्वान जो है वो लम्हा फिक्रिया रखा गया है, तो इसकी क्या वजह है? लेकिन लम्हा फिक्रिया तो हमारे साथ बड़े टाइम से चल रहा है, लेकिन ये वाकई लम्हा फिक्रिया है कि जो लोग लोगों की गोदों में बैठे हुए हैं और वही लोग जा जाकर मुलाकातें भी कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है एक चीज। तो इसके लिए हमारे पास भी आए, जाहिर सी बात है, लेकिन हम उस लम्हा फिक्रिया को देखते हुए कि हमारी आवाम, हमारी महाजिर कौम किसी गलत जगह पे ना चल पड़े, तो उसके लिए आफाक भाई अपनी आवाम के साथ एक डायरेक्ट मुलाकात के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि जो है पंडाल सजा दिया गया है और मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया गया है और कुछ ही देर बाद चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद साहब जो है कौम से अहम जो है वो खिताब करेंगे। जी, कराची में गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना हराम कर रखा है। औरंगी टाउन में कई दिनों से गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यही वजह है कि इलाका मकीन सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। औरंगी टाउन में पहले ही बुनियादी सहूलियात का फुकदान था, अब गैस बहरान ने मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रिहायशी आबादी में कई घंटे गैस गायब रहती है, जिसके बाइस शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना पका रहे हैं। खवातीन का कहना था कि सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए घंटों लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। भाई घंटों 2 घंटे बाद नंबर आता है हमारा। मैं औरत ज़ात होकर खुद अकेले जाती हूँ, लेकर आती हूँ, बच्चे इधर रो रहे होते हो, फिर पकाओ। छोटे बच्चों को लेकर सिलेंडर यूज करना कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन का मानना है कि गैस ना होने से बाहर से खाना भी लाना पड़ता है, जिससे बीमारियां जन्म ले रही हैं। बाहर से सालन मंगाओ, बंदा कितना खाएगा? बाहर से खाना खा के बंदे का पेट खराब हो रहा है। बहुत से घर में ऐसे भी हैं जो मरीज हैं, नहीं खा पाते घर का खाने के अलावा बाहर का। गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग और जायद बिलों के सताए मकीनों ने सिंध हुकूमत से मसाइल फौरी हल करने की अपील कर दी है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा हमना निसार, सिटी 21। कराची में महंगाई का राज है। घी तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। बी ब्रांड का तेल घी की बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। खुर्दनी तेल की कीमतों ने सर्दी में आवाम का पसीना निकाल दिया। महंगाई के मारे आवाम अजियत से दो चार हो गए। शहर में बी ब्रांड का तेल घी बनाने वाली कंपनियों ने फी लीटर तेल घी 30 रुपए से 50 रुपए तक महंगा कर दिया। फी लीटर तेल घी का पाउच 400 रुपए और 5 लीटर का फी कार्टन 150 रुपए इजाफे से 2000 रुपए पर पहुंच गया, जबकि घी का 12 किलो का फी कार्टन 400 रुपए इजाफे से 4800 पर पहुंच गया। दूसरी जानिब प्रीमियम ब्रांड के तेल घी की किल्लत भी शुरू हो गई। कि तेल की कीमतों को तकरीबन 50 रुपए किलो के हिसाब से 2 दिन में इजाफा कर दिया और जो बी ब्रांड है उसकी कीमतों में कम से कम 40 रुपए लीटर और किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। और जो ए ब्रांड है वो मार्केट में इस टाइम जो है बिल्कुल शार्ट है, क्योंकि बहुत सी मिलों के अंदर माल ही नहीं है जो मार्केटों के अंदर माल अवेलेबल हो, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेज की वजह से लोग महंगे दामों में भी खरीदने पे मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बाइस पकवान की तैयारी का अहम जुज़ तेल घी की खरीदारी पहले से ही कम कर दी है। ऐसे तो बहुत बढ़ गए। अभी देखो 480 था, अब ये 520 हो गया एकदम। आटा देखो कहाँ पहुँच रहा है। तो तेल ली तो ऐसा हो जाना चाहिए, तो 250 रुपये हो जाए किलो, 200 रुपये किलो हो जाए, इससे ज़्यादा क्या होगा। डॉलर और मुल्क में जारी माशी बहरान महंगाई के तूफान को मजबूत बनाने का सबब बन रही है, जिसने दरामद कुंदगान, ताजिर और शहरियों के लिए माशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ठंडी हवाओं के झोंकों ने जहां मौसम को सर्द कर दिया है, शहर काद में गर्म कपड़ों की भी मांग बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में सस्ते बाजार किसी नेमत से कम नहीं।
धूम मचाते जाड़े में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। शहर में सस्ते बाजारों में शहरियों का रश। आम बाजारों के मुकाबले में सस्ते बाजारों की रौनकों में इजाफा और गर्म कपड़ों की खरीदारी का रुझान भी बढ़ गया है। शहरी कहते हैं स्वेटर्स और जैकेट्स को खरीद से बाहर हैं, जिनकी कीमतें हजारों में बताई जाती हैं, लेकिन सस्ते बाजारों में सेकंड हैंड स्वेटर्स, जैकेट और दीगर गर्म मलबूसात सस्ती मिल जाती हैं। मार्केट में अगर शॉप से खरीदते हैं तो वहाँ तो बहुत महंगी पड़ती है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यहाँ ये कि मिल जाती है। गरीबों के लिए सही है, यहाँ पे सस्ता माल है, यहाँ पे दुकानों से बेहतर है। यहाँ बस सस्ता मिले 200-250-300 वाला मिल जाता, दुकान पे 2500-2000 से नीचे ही नहीं है। सेकेंड हैंड गर्म कपड़े और दीगर अशिया यूरोप, अमेरिका और चाइना से दरामद की जाती हैं, जो सस्ते बाजार में औसतन जैकेट्स की कीमत 700 से 1000 रुपए तक और स्वेटर्स की कीमत औसतन 200 रुपए में दस्तयाब होती है। सहूलत तो बहुत है, क्योंकि अब नई किसी दुकान पे लेने जाओ जैकेट या स्वेटर तो वो 3-4 हज़ार से नीचे नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि अच्छा ढूंढने से 200 में, 250 में, 400 में, 500 में अच्छा स्वेटर मिल जाता है। ये इसकी सहूलत तो है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में गर्म कपड़ों के हवाले से सस्ते बाजार किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ज़िले वस्ती के न्यू कराची जोन के मरकजी गोदरा रोड से मुंसलिक बरसाती नाले से तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया जा सका, जिसके बायस नाला मुसलसल ओवरफ्लो रहने से सड़क बंद और अतराफ के इलाकों में कई माह से गंदा पानी जमा है। राशिद मिनास रोड शफीक मोड़ से न्यू कराची अल्लाह वाला कॉलोनी जाने वाली 8 किलोमीटर तवील गोदरा रोड का एक ट्रैक मदीना कॉलोनी के मुकाम पर बंद है, क्योंकि रोड से मुंसलिक नाला मुसलसल उबल रहा है। नाले पर काबिज अफराद कब्जा खाली करने के लिए मुतबादिल जगह की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। चाहते हैं कि बेशक आप इसको ख़त्म कर दें, लेकिन जो हज़ारों लोग जो बेरोज़गार हो जाएंगे, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, हज़ारों दुकानें बनी हुई हैं इसके ऊपर, तो इसका कोई गवर्नमेंट सोचे ना इसका कि भाई इसका सद्देबाब क्या है, इसका मुस्तकिल हल कोई निकाला जाए ताकि लोग बेरोजगारी भी ना हो और क्या नाम है उनका ये मामला भी हल हो जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि दूसरे नाले का पानी इस नाले में डाले जाने से मसले ने जन्म लिया है। आने जाने के लिए एक ही ट्रैक इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी जा बजा गड़े हैं। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। देखें रोड वगैरह ब्लॉक हो गया है, यहाँ से ट्रैफिक में डबल रोड चल रहा है, आने जाने से भी लोग मुतासिर है। पीछे से लोग पीछे की आबादी बहुत परेशान है, उनके घरों में भी पानी भर चुका है। कारोबारी तकबा तो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मसला होता है पानी का या बारिश का या फिर रोड के ऊपर पानी होता है तो सबसे ज़्यादा कारोबारी तकबा ही मुतासिर होता है। न्यू कराची अल्लाह वाला से गोदरा तक नाले पर बरसों से घरों और दुकानों की तामीर हैं, जिन्हें हटाने के ऐलानात तो बहुत हुए मगर नतीजा हमेशा सिफर ही रहा। कैमरामैन शाहजीब रजा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।